Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. I hope all of you are doing very, very well and your studies are going great. So, this is the week number three of daily PYQ, and today we'll be taking seven PYQs, and they would be from HCF and LCM topic, and the three PYQ would be from your comprehension, reading comprehension. So, reading comprehension is very, very important. Every year, 25 questions at least are asked from reading comprehensions, and you can easily manage 20 questions. Five may be difficult, or some of them may you can mark them as incorrect. So, the language of the questions that UPSC makes is very difficult to replicate. The institutions which are making the test series generally cannot replicate the same type of language. They can replicate the mathematics or logical reading questions, but it is very difficult to replicate the this reading comprehension. So I suggest you to do at least two or three reading comprehension every day, or maybe if you cannot yourself, then you can follow this initiative. Further, 5 to 6 days back, I had a conversation with a person whom I mentored for CSAT. He cleared the CSAT, he cleared the prelims, and he wrote mains. But his optional was not prepared, so he could not clear it, the mains. So we were discussing, and he told me that, sir, you told me to do comprehension every day, and because of that, I was able to solve 24 out of 25 comprehensions. Okay. In 2024 paper, he was able to solve correctly mark 24 out of 25 comprehension. So comprehension definitely is important, and the proof is in front of you. So now, without wasting time, we'll move on further and we'll take the comprehension first from 2024 paper set A. The first comprehend we the remaining comprehension from 2024 we have already done. Now we'll take some more comprehension from 2024 paper set A. Let's start. Directions for the following three items. Okay. Now. Okay. Read the following three passages and answer the item that follow the passages. Your answer to these items should be based on the passage only. This line is very important that your answer has to be based on passage because generally वो जो GS के topics आप newspaper में पढ़ते हो from that only they are making this comprehension and you already have some pre-knowledge about that topic. And after reading, for example, they provide statements after this comprehension. So in statements में they set option in such a way that they कि they know that you are reading newspaper. Newspaper में कुछ अगर डाटा है कुछ वैसा आ जाता है उसके बारे में तो वो उसी से आपकी ऑप्शंस प्रिपेयर कर देते हैं. So in the examination when you are very much stressed, so you end up marking those also correct because of your already GS knowledge, you think that this option is correct. But according to the passage, the thing which you are marking as correct may not be right. Okay. For example, uh, from your already known observation, you know that the ostrich cannot fly. But the passage may write that ostrich can fly. So you have to consider ostrich can fly. आपको अपनी खुद की जो नॉलेज पता है पहले से उसको यूज नहीं करना तो स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 1 से. When an international team of scientists pumped carbon dioxide and water mix into underground basalt rock, basic chemistry took over. Okay. तो साइंटिस्ट ने क्या किया पंप किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके जो अंडरग्राउंड बसाल्ट रॉक्स होती हैं उनके अंदर तो फिर एक केमिकल रिएक्शन हुआ उस केमिस्ट्री टू प्लेस का मतलब है केमिकल रिएक्शन हुआ. द एसिडिक मिक्सचर जो CO2 और वाटर है उसे कार्बोनिक एसिड बना. तो एसिडिक मिक्सचर डिजोल्व रॉक्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ओके. सो जो बसाल्टिक रॉक में आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम था तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर था एसिडिक मिक्सचर था इसने कैल्शियम और मैग्नीशियम को डिसॉल्व कर दिया और उससे बनाया लाइमस्टोन. ओके. बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू स्टोन exclaimed the scientist. So scientists said that the carbon dioxide could be converted to the stone. Okay. ये साइंटिस्ट ने कहा. अब आगे चलते हैं. Which of the following statements best reflect the most logical and rational and practical suggestion implied by the passage?
It is cheap and practical method to produce limestone at commercial level for building purposes. लाइमस्टोन प्रोडक्शन चीप है और प्रैक्टिकल है, इसके बारे में देर इज नो टॉक इन द पैसेज, सो दिस इज completely wrong. This can be used as one of the methods of carbon sequestration. You can mark it as right because ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेट ही तो हो रहा है कि आपने बाहर से कार्बन लिया और उसको अंडरग्राउंड बसाल्ट रॉक में डाल दिया, तो आपने कार्बन को मतलब कहीं से लिया और कहीं और जाके सिक्वेस्ट्रेट कर दिया. ओके, तो दिस कैन बी कंसिडर करेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं. अगर आगे और कोई ऑप्शन मिलेगा जो इससे ज्यादा करेक्ट होगा तो वो सही होगा. Basalt rocks can be made a good source of calcium and magnesium minerals by that method. No, 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 no. It is never not discussing about this कि basalt rock can be a good source of calcium and magnesium because it is just saying that कि उस कार्बोनिक एसिड ने इनको डिसॉल्व कर लिया और जिसकी वजह से लाइमस्टोन बन गया. ठीक है, तो वो बसाल्ट रॉक सोर्स हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है. उस बसाल्ट रॉक में ये प्रेजेंट था बस कैल्शियम और मैग्नीशियम. उस बसाल्ट रॉक में तो एक रॉक है, उसमें देयर कैन बी अदर मिनरल्स आल्सो. ओके. Good rock dissolving acid can be produced by mixing carbon dioxide and water. No, no, no. It is nowhere talking about that by mixing carbon dioxide and water you can make a good type of acid जो rock को dissolve कर सकता है. ऐसी कोई बात हुई नहीं है. तो according to this only B is correct. So now we move on to next passage number 2. Geographers analyzed 175 satellite images of ocean color. Okay, which is an indicator of phytoplankton productivity at the ocean surface. ठीक है, ये क्या है, जोग्राफर्स ने क्या किया, वन साइड पर सैटेलाइट इमेजेस को ऑब्जर्व किया जिसमें ओशंस के कलर थे. तो जो ओशन का कलर होता है वो इंडिकेट करता है आपको फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी के बारे में. ठीक है, एंड फाउंड दैट जायंट आइसबर्ग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग अप टू 20% ऑफ कार्बन इन सर्दर्न ओशन. ओके, फर्दर उन्होंने देखा कि जो आइसबर्ग्स हैं वो स्टोर करते हैं 20% ऑफ द कार्बन इन सदर्न ओशन. द रिसर्चर्स डिस्कवर दैट मेल्टिंग वाटर, जब ये आइसबर्ग से वाटर मेल्ट हो रहा है, which contains iron and other nutrients, support hitherto unexpectedly high levels of phytoplankton's productivity. So researchers found out that when the water from this iceberg is melting, so this iceberg contains iron and other nutrients, जिसकी वजह से phytoplankton productivity सपोर्ट होती है. अब फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ सपोर्ट होती है. अब आगे चलते हैं. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions की बात हो रही है. Giant icebergs have a bearing on primary productivity and food chain of southern ocean. This can be assumed because देखिए, अगर आपको पता है तो फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है और ये क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है आइसबर्ग जो मेल्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से ये फूड चेन में हेल्प तो कर ही रहा है क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है उसे. मेल्टिंग ऑफ जायंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट एंड इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज. ऐसी कोई बात हुई नहीं है. वैसे आप एक्चुअली में if we see we can also not consider this first statement as right because we have not talked about any primary productivity or something, but assumption basis पे we can say it is correct, so our answer would be A only. Okay, so आप इसको रेफर करना जो आपका यूपीएससी क्या कंसीडर करता है, इसको अगर करेक्ट मानता है तो करेक्ट है, नहीं है तो नहीं है. वैसे मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की कोई फाइटोप्लैंक्टन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इसने रिलेट नहीं किया. वो तो आपकी प्री नॉलेज है कि फाइटोप्लैंक्टन्स, बिकॉज इफ यू हैव रेड एनवायरमेंट देन यू नो अबाउट द फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी. बट ये तो पेपर आपका सी सेट का है जहाँ पे आपकी मतलब लॉजिकल स्किल्स को चेक कर रहे हैं वो, क्योंकि ये पैसेज भी एक लॉजिकल स्किल ही चेक कर रहा है. So this passage nowhere relating primary productivity, okay, to iceberg. So it should not be considered right. But assumptions की फॉर्म में इसको कर सकते हैं, तो आपको देखना होगा, आप चेक कीजिएगा उसमें. ठीक है. एवोल्यूशन, अब थर्ड पैसेज पे चलते हैं. एवोल्यूशन हैज एंडाउड कैटरपिलर्स दैट फीड ऑन कॉर्न विद यूनिक एबिलिटी. ठीक है, एवोल्यूशन ने जो कैटरपिलर जो कॉर्न को खाते हैं उनको एक यूनिक एबिलिटी दी है. दे कैन इंड्यूस द प्लांट टू टर्न ऑफ इट डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट प्रेडेटर्स. कि वो प्लांट्स को फोर्स कर देते हैं कि आप मतलब जो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है उसको शट डाउन कर देता है. वो जो इंसेक्ट्स वगैरह के अगेंस्ट प्लांट्स का एक मैकेनिज्म होता है ना, जिससे जिसकी वजह से प्लांट्स इंसेक्ट उसको हार्म ना कर पाए, खा ना पाए.
दिस हेल्प्स कैटरपिलर्स टू ईट मोर एंड ग्रो फास्टर। इसकी वजह से कैटरपिलर ज्यादा खा सकते हैं और तेजी से बढ़ सकते हैं। द एजेंट दैट कॉजेज द इफेक्ट इन द कैटरपिलर्स फेसेस ऑफ फ्रास। ओके, तो जिसकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म बंद हो जा रहा है वो कैटरपिलर की फेसेस या फ्रास है। द फाइंड कुड थ्रो न्यू लाइट ऑन कंपाउंड्स एसोसिएटेड विद प्लांट रिस्पॉन्स टू पैथोजन लाइक फंगस एंड बैक्टीरिया। इस फाइंडिंग से क्या हो सकता है कि ये एक नई लाइट दिशा में डायरेक्ट कर रहा है कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं फंगई और बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ओके, so which of one of the following statement best reflect the most logical, rational, and practical message conveyed by the passage? Farmers can use caterpillars to feed on weeds in their crop feed and plantation. ऐसा farmers से रिस्पेक्ट में कोई बात हो ही नहीं रही है कि farmers को क्या यूज सकता है, तो गलत होगा। This finding can help in the development of clinically useful antimicrobial compounds. Antimicrobial compounds के बारे में कोई बात हुई नहीं है, तो इसको आप काट दो। वो तो बस ये कह रहा है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म को उसके शट डाउन करता है, तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी का तो कोई बात ही नहीं है ना इसमें। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि ये दिस फाइंड could throw a new light on a compounds with plant response to pathogen like fungi and bacteria। ठीक है, तो उसका यूज करते हुए हम क्या बना सकते हैं, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्ट बना ही सकते हैं। कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी प्रेडेटर्स ऑफ द अदर प्लांट्स। ऐसी कोई बात हुई नहीं है, इसको आप काट दो, तो आपका सिर्फ सी करेक्ट है। So with this, we are done with the three comprehension. Now we'll take up the HCF and LCM question. The first question that will be taken up is question number your 19. Okay, HCF and LCM, very very easy question. This type of question you have already done in the HCF and LCM lecture illustration में आपने क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, आप देखो बस थोड़ा सा इसने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया हल्का सा। ओके, तो क्वेश्चन है X contains 399 liters of petrol and Y contains 352 liters of diesel। ठीक है, they are to be bottled in bottles of equal size so that whole of petrol and diesel would be separately bottled. Isn't it the same type of question we talked in the illustration where we talked about the camel milk, buffalo milk, and the cow milk, where the milk has to be bottled of equal sizes? The bottles capacity in terms of liters is integer। ओके, मतलब इंटीजर्स है, मतलब ये ऐसे इंटीजर का मतलब कि पूरा नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे 1.2 3.2 ऐसे नहीं है। इंटीजर्स जो होते हैं वो कंप्लीट नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1.2 1.3 या फिर ऐसे 1/2 ऐसा नहीं है। ठीक है, कंप्लीट नंबर है। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट साइजेस आर पॉसिबल, कितने डिफरेंट साइज पॉसिबल। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि जैसे दो क्वांटिटीज हैं, अब इसको सेम टाइप ऐसे में डालना है कि ये सारे के सारा पेट्रोल और डीजल आ जाए और इक्वल साइज की बॉटल बने, उसी कैपेसिटी हो, तो उसके लिए हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होता है जो दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि हम एचसीएफ लेते हैं। तो हम एचसीएफ लेंगे किस किस का। एचसीएफ विल बी टेकिंग अप ऑफ 399 एंड 532। तो 399 का एचसीएफ निकालने के लिए आप लिखोगे इसको 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू योर what 19, and 352 को you will write it down as 1 into your 2 into 2 into your 7 into your 19। okay, now HCF में what we do, we take हमें कॉमन नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो कॉमन आ रहा है 7 एंड 19, 7 एंड 19। तो आपके पास जो है एक तो बॉटल हो जाएगी, क्योंकि इसका 7 लीटर की हो सकती है एक बॉटल। ठीक है, क्योंकि कॉमन आ रहा है। फिर एक 19 लीटर की बॉटल भी हो सकती है। अब जो HCF आएगा वो आएगा 7 इंटू 19 विच गिव्स मी ए नंबर 133। तो अलग बॉटल एक और 133 लीटर की हो जाएगी। और वन तो दोनों में कॉमन है ही, अगर आप 1 लीटर की बॉटल ले लोगे तो उसके 399 बॉटल्स बन जाएंगी पेट्रोल की और 352 बॉटल्स बन जाएंगी डीजल की, इजंट इट। सो आपके पास कौन कौन से साइज पॉसिबल हो गए, 1 हो गया, 7 हो गया, 19 हो गया एंड 133 लीटर्स। सो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो आंसर वुड बी बी, दैट इज हाउ मेनी डिफरेंट साइजेस आर पॉसिबल। तो 4 डिफरेंट साइजेस आर पॉसिबल। ओके, so after this we'll be taking up the 2023 paper set A SCF and LCM question. The question which is there is your question number 50, and this type of question we have already done in our illustration. Okay, बस थोड़ा सा modification है इसमें भी। uh, let's say, let's see the question. There are 3 traffic signals. Each signal changes color from green to red। मतलब green से आपका ये रेड हो जा रहा है। ओके, एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन, फिर रेड से फिर ग्रीन हो रहा है।
The first signal takes 25 seconds, second signal takes 39 seconds, and third signal takes 60 seconds to change the color from green to red. Isn't it the same type of question जो हमने रेस वाला डिस्कस किया कि तीन लोग हैं, ठीक है, उसका ए का स्पीड ज्यादा है, बी का कम है, सी का उससे कम है, तो कितने टाइम में वो आपस में मिलेंगे, तो उसमें एलसीएम देना होता है। और हम बेल वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ट्रैफिक लाइट का भी कर चुके हैं, तो सेम टाइप का ही है, ठीक है। दो ड्यूरेशंस फॉर ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम, ओके, तो ये ग्रीन से जब रेड हो रहा है और रेड से जब ग्रीन हो रहा है, जो टाइम लग रहा है वो सेम है, ठीक है। एट 2 p.m. दे टुगेदर टर्न ग्रीन, ओके। एट व्हाट टाइम विल दे चेंज ग्रीन टू ग्रीन अगर अगेन, ओके। तो ये कह रहा है ईच सिग्नल चेंज करता है ग्रीन से रेड एंड देन रेड टू ग्रीन। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25, सेकंड लेता है आपको 39, थर्ड लेता है 60 टू चेंज फ्रॉम फ्रॉम ग्रीन टू रेड। तो ठीक है, तो 2 बजे ग्रीन था, तो अब ये साथ में रेड कब होंगे, पहले वो फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि वो दोबारा से ग्रीन कितने टाइम में हो पाएगा। ओके, सो व्हाट वी डू, वी टेक द एलसीएम। तो फॉर टर्निंग फ्रॉम ग्रीन टू रेड आई हैव ऑलरेडी बीन गिवन दैट वो एक 25 ले रहा है, एक 39 ले रहा है, एक 60 ले रहा है। तो तीनों जब ग्रीन से रेड कब हो जाएंगे, तीनों एक साथ ग्रीन से रेड कब होंगे, तो आई नीड टू फाइंड द एलसीएम फॉर दैट। तो 25 को मैं लिखता हूँ 5 into your 5, 39, I would write it down as 13 into your 3, and for your 60 I would write it down as 2 into 3 into your 2 into your 5। ओके, सो आपका एलसीएम में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होते हैं वो लेते हैं। तो आपके पास 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 5 to the power 2 into your what, 2 की पावर हाईएस्ट is 2, 2 to the power 2, 3 की हाईएस्ट पावर 3 and your 13। So it gives me your what, 3900, isn't it? Because 13 3 39, ठीक है, और ये आपका 25 4 100 बना देगा, तो 39 into 100 इज 3900 सेकेंड्स में। 3900 सेकेंड्स में जो है आपके पास ये एक साथ ग्रीन टू रेड हो रहे हैं। ओके, सो मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3600 डिवाइडेड बाय 60, तो आई गेट 65 मिनट्स, which would give me your 60 minutes is 1 hour and 5 minutes, so 1 hour 5, after 1 hour 5 minutes they would simultaneously turn from green to red. अब I have been given that from green to red and then from red to green, the time taken is same, t and t. One t I have found 1 hour 5 minutes, so other t would be also 1 hour 5 minutes. So total time from green to green would be your 1 hour 5 minutes from green to red, and then 1 hour 5 minutes from your red to green. So I add 1 hour 5 minutes, both 1 hour 5 minutes, so I get 2 hour 10 minutes. तो ये फिर से जब एक साथ ग्रीन हो रहे हैं वो 2 घंटे 10 मिनट बाद होंगे। तो पहली बार हुए थे 2 बजे। तो अब ये पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट। तो ग्रीन जब नेक्स्ट होंगे तो पहले ग्रीन से रेड में जाएगा, फिर रेड से ग्रीन में जाएगा, उसका टाइम मैं निकाल लिया, 2 hour 10 मिनट्स लगते हैं। एंड पहला 2 बजे हुआ था, तो अगला कितने बजे होगा, इसमें आप ऐड कर दो 2 p.m. में, तो 2 p.m. में आप 2 hour ऐड करेंगे तो 4 p.m. एंड 10 मिनट्स इज फर्दर, तो 4 10 p.m. ठीक है, तो 4:10 पे वो फिर से होगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 50। नाउ विल मूव ऑन टू योर क्वेश्चन पेपर 2022। ओके, here the question is question number 47. Set A is the paper, and set A में 2022 paper set A question number 47. Okay, this type of question we have already done. This is an LCF type of question. The question says a person X wants to distribute some pens among 6 children A, B, C, D, E and F. Suppose A gets twice the number of pens received by B. जो A है उसको twice of B मिल रहा है, सी बाई बी, 3 टाइम्स ऑफ ए को मिल रहा है 3 टाइम्स ऑफ सी, एंड डी का मिल रहा है और ए को मिल रहा है 4 टाइम्स ऑफ डी, एंड योर ए इज गेटिंग 5 टाइम्स ऑफ ई एंड 6 टाइम्स ऑफ ई। What is the minimum number of pen X should buy so that number of pen each one gets is even? तो यहाँ पे आप देखो कि 2 3 4 5 6 ये फैक्टर्स हैं, है ना। तो
ए को इतने पेन मिले होंगे कि जिन ऐसा एक नंबर मिला होगा पेन का जो इन सारे नंबरों से आपका डिवाइड हो सकता हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो विल टेक द एलसीएम ऑफ व्हाट, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, so LCM 2 into 1, then 3 into 1, then 2 into 2 for 4, and for 5 is 5 into 1, and then for 6 is 2 into 3. तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2 to power 2, आपकी 3 की तो एक ही है into 5. Okay, so your LCM from here would be your 60, isn't it? 60. So I can say that A would be having 60 pens. तो A के पास 60 pens हो गए, ठीक है। ए के पास आपके 60 पेन्स हैं, तो बी के पास कितने होंगे, 60/2, इजंट इट। सी के पास हो जाएगा आपका कितना, सी के पास थ्राइस थे तो 60/3, एंड आपका डी के पास हो जाएगा 60/4, बट एंड योर ई के पास आएगा आपका 60/5, एंड योर एफ के पास आएगा 60/6। तो ये आप, you see one thing here, तो 30 आ गए, here you'll get 20 pence, here you will get 15. So 15 is a odd number, so it is not possible, this is not possible because वो कह रहे even होना चाहिए, तो even लाना है पड़ेगा। आप तो यहाँ पे आया था, आपको डिवाइड करने पे आपने 12 आ जाएगा और यहाँ आपका 10 आया था। तो अगर मैं 60 को 120 लेता हूँ तो इसका मल्टीपल ही तो है, अगर ट्वाइस कर देता हूँ तो अगर मैंने ए को आपके 60 की जगह 120 पेन दे दिए, 60 को 120 कर सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीपल ही तो है उसका, ट्वाइस ही तो हो रहा है। तो आपके पास जो बी के पास पेन थे वो ट्वाइस हो जाएंगे, बी के पास 30 थे तो पहले कितने हो जाएंगे, अब 60 हो जाएंगे। सी के पास 20 थे, 40 हो जाएंगे। डी के पास 15 थे जो ऑड आ रहा था, तो अभी 30 हो जाएगा जो इवन नंबर है, तो इवन आ गया अब इसके पास भी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है मेरे पास। और ई के पास आपके 12 थे तो 24 हो जाएगा, एफ के पास 10 थे तो इसके 20 हो जाएंगे। अब इसके सारे पेन्स को ऐड कर लीजिए, 120 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 24 प्लस योर 20, दिस वुड गिव मी 294। सो योर आंसर इज सी, 294 पेन्स। Now we'll move on to your question paper of 2021 set A, 2021 set A, and your question number is 75। तो ये कैलेंडर एंड आपका एचसीएफ एलसीएम का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। Joseph visits a club on 5th day, Harsh visits every 24th day, Sumit visits on 9th day. If all three of the same met at the club on Sunday, then on which day will all three meet again? Now you see one thing, ये भी वैसे ही है कि एक जो है हर 5th डे जा रहा है, एक 24th में जा रहा है, एक 9th डे जा रहा है। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, अगर ये एक इनका कॉमन डे फाइंड करना है तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम। तो हम एलसीएम लेंगे, तो आपका होगा 5 into 1, देन योर is your 24, so it would be your 4 into 6, you can write it down as 2 into 2 into 2 into 3, and then is your 9, तो 9 you can write down 3 into 3. So LCM would be आपका सबसे हाईएस्ट पावर 2 की 2 to the power 3, 5 की 5 and 3 की 3 to the power 2. So your LCM here comes out to be 3 3 6, sorry, 3 3s are 9, and 2 into 2 4, and into your 10 तो 4 and 36 तो 360। तो they'll meet after 360 days। अभी मेरे पास डेज आ गए, ठीक है, आई हैव डेज। सो दीज पीपल, जो है 360वां दिन होगा ना इनका, जो उस दिन मिलते हैं ये 360वें दिन पे, ठीक है। और जो पहले जब ये मिले पहली तो संडे था वो, तो अब हमें डे फाइंड करना है वो, तो हर, तो मतलब ये 365 डेज बाद मिले, तो मतलब ये पूरा साइकिल संडे का कंप्लीट हो रहा है। तो हमें डे फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, हम 360 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 में तुम, क्योंकि एक वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं और वो संडे को मिले हैं, तो जो अगला आएगा वो संडे के बाद से मतलब अगर वो पूरे पूरे संडेज कंप्लीट होते जा रहे हैं इसके अंदर, तो जो संडे आने के बाद जो नेक्स्ट डेज बचेंगे तो उस डे पे वो मिल जाएगा। अगर तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर से संडे को ही मिलेंगे, मतलब अगर यहाँ रिमाइंडर कुछ और आता है हमारे पास डिवाइड करने पे, तो वो संडे के बाद दिन को काउंट कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कि वो इस दिन मिलेंगे। तो दिस इज 7 5 35 and 1 0 and 7 1 just 7 and your 3 is your remainder। तो संडे के बाद
आपको अभी ये रिमाइंडर 3 मिल गया, तो 3 डेज काउंट करने हैं, ठीक है। ये कह रहा था ना कि ऑल ऑफ देम मीट एट क्लब ऑन संडे, तो संडे को मिले पहले। ऑन विच डे विल दे मीट अगेन, अब वो फिर से कब मिलेंगे संडे के बाद। तो एक बार संडे के मिल गए तो वो 360 डेज बाद मिलते हैं, ठीक है। तो फिर वो अब संडे को मिले तो अगर वो 7 से डिवाइड कर दोगे तो 360 में जितने भी संडेज आ रहे होंगे वो सारे काउंट हो जाएंगे। तो संडे के बाद जो नेक्स्ट डेज बचेंगे वो ये हैं 3, तो वो 3 काउंट कर लो, तो वो आपका होगा मंडे, ट्यूसडे एंड वेनेसडे। तो ये वेनेसडे को मिलेंगे अब, तो आपका आंसर बी हो जाता है। 2020 में नो क्वेश्चन वाज आस्क्ड, so with this we are done with the reading comprehension and LCM and HCF क्वेश्चन। एवरी ईयर मे बी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो प्योरली HCF एंड LCM के हैं, और क्वेश्चंस भी आते हैं जो मिक्सचर होता है। तो ओवरऑल आपका 2 क्वेश्चंस तो देगा ही, तो 5 मार्क्स का आपके पास एडवांटेज हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन रोड प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज यू कैन इजीली डू 20 क्वेश्चंस, ओके।